Hi friends and welcome to Cricket Caviar. We are here to discuss about the first ODI between India and New Zealand or New Zealand ka ek comprehensive win. They absolutely made the total of 306 look like it was 240 or something. So yes, Kunal, Pratik, what's your views on this comprehensive win by New Zealand? भाई मैंने तो कहा ही था न्यूजीलैंड फेवरेट्स है 2-1 और बट अमेजिंग डिस्प्ले मैन टॉम लेथम जो एक्चुअली टी20 साइड में भी नहीं खेलता वो इतना अच्छा वाइड बॉल के साथ बैटिंग किया एंड ही शोड लाइक हाउ टू प्ले क्रिकेट एंड इंडिया का क्रिकेट मैं बोल रहा हूँ पीछे चला गया है यार 10 इयर्स पहले हम लोग इजीली 350 बनाते थे ऐसे ग्राउंड्स पे जहाँ कोई कंडीशन का कोई ऐसा महत्व नहीं है बट पता नहीं क्यों हम लोग ऐसा जस्ट 300 का टारगेट लेके जाते हैं एंड या इट्स सैड टू सी द अप्रोच वाजंट देयर Yeah, and New Zealand were always the favorites. I mean, in general, हमारा record कभी अच्छा नहीं रहा New Zealand में. New Zealand has been the most difficult country for us, I will say. And yeah, New Zealand was pretty good. Yeah, Tom Latham is a player I have spoke really well about since a long time. He's not a T20 player. That's तभी वो T20 नहीं खेलता है, ठीक है? But हाँ, he's really good in tests and ODIs. Actually, I just saw that New Zealand are actually number one ranked side in ODIs as per ICC. Yeah, they are ranked number one, and India is number 3. No, India is number 4, I think now. So yes, New Zealand number 1 side है और India New Zealand में last 5 ODIs हार चुकी है. But coming to this particular ODI, मुझे लगा again the problem was middle overs batting. It was purely, I will blame this on middle overs ka. Again we are scoring an under par total and ठीक है bowling खराब है and it's easy to blame the bowlers, but you are again scoring an under par total. So you should be targeting on a ground like Eden Park where once Australia scored 347 and Marcus Stoinis hit 17 sixes and chased down a big total. उस तरह के ग्राउंड पे आप को टारगेट करना चाहिए था 350 on this ground, but it was only because of Washington Sundar that we scored 50 runs in last 3 overs. Otherwise yeah seriously actually 300 भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा था एक स्टेज पे yeah वो सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर के इनिंग्स की वजह से हुआ and after Gill and Dhawan got out, so the score was 23 overs में 124 for 0, and after both of them got out, the next 10 overs were shocking, and credit to New Zealand and bowling attack. Like they had Milne bowling along with Milne was bowling along किसी और के साथ. I'm not able to remember. अरे दूसरा पेन ले आओ, ये तो अच्छा नहीं चल रहा, खत्म हो गया. दूसरा कलर ले आओ, चल नहीं रहा. श्रेयांश भाई आप भाई म्यूट पे. अच्छा, so yeah, what is your thought middle overs batting पे Pant, especially how Pant and Iyer started that partnership with lot of dot balls? I feel कि it's not fair to go directly to blame the middle order here. I think हमारी approach starting से ठीक नहीं थी. ठीक है, जब हमें पता है छोटा ग्राउंड में रन ज्यादा बनते हैं, धवन और गिल को और aggressive ओपनिंग करनी चाहिए. They were very slow. ठीक है, उन्होंने कितना गिल का स्ट्राइक रेट 80 से कम मैंने कभी देखा ही नहीं पहले यार. पता नहीं गिल को क्या हो गया है. And why was Pant and Shreyas both like playing that slow innings, man? Like at least one should have tried to score freely. दोनों एकदम ऐसा 50 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे थे. Talk about the order first. Did they open well? I don't think so. भाई starting of the power play होता है, runs बनाने चाहिए. If you compare this with how 100 partnership कर दी तो you can't blame them, ना. That's the like we need to have a opening like that. यार ऐसे हम लोग ने स्टार्टिंग से मोमेंटम नहीं रखा और मोमेंटम और डाउन हो गया मिडिल ओवर्स में. हमारी अप्रोच स्टार्टिंग से खराब. 23 ओवर्स में जो स्कोर है वो ओडीआई में ट्रिपल करना चाहिए. तो 23 ओवर्स में 120 था तो इट शुड हैव बीन 360. तो मैं ओपनिंग को कंप्लीटली ब्लेम नहीं करूंगा. मिडिल ऑर्डर बैटिंग वाज मच वर्स. अच्छा कुणाल, I agree with your point. मतलब कि first 10 overs में we played 44 dot balls out of 60 balls. मतलब we played 44 dot balls, like 60 में से 44. So we had 16 scoring shots basically in the first 10 overs. तो मतलब 35 रन हमने बनाए पावर प्ले में, न्यूजीलैंड ने 42 बनाए. ठीक है, वो कहीं ना कहीं लेवल आउट हो गया क्योंकि बॉलिंग कंडीशंस अच्छे थे फर्स्ट 10 ओवर्स में. लेकिन उसके बाद जब आप 23 ओवर्स में यू हैव अटैक द नेक्स्ट 10 ओवर्स
and you have reached 23 overs में 144. अगर एक विकेट गिरता है तो the next batsman whoever comes at number 4 or number 5 he has to learn to take singles. नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 4 ना ये नहीं डॉट बॉल्स नहीं खेल सकते. आप डॉट बॉल्स खेल खेल के प्रेशर बना रहे हो और एंड में यू नीडेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स, नहीं तो वो नहीं बन पाता. एक्चुअली सैमसन एंड श्रेयस का भी पार्टनरशिप अच्छा था 94 in 77, but I still disappointed by Samson. I'm still disappointed. I felt he should have been the one to attack, but he played a very run a ball kind of innings. So yeah, overall quite disappointing. He would have played better man अगर पंत की जगह आता. उसको उतारते भी तो इतना पीछे उसका नेचुरल पोजीशन नहीं है. और मैं सोच भी रहा था अगर श्रेयस अय्यर थोड़ा जल्दी उठ जाता तो क्या पता शार्दुल ठाकुर और वॉशी मिलके 320 पहुंचा देते एटलीस्ट. बट एनीवेज द वे लेथम प्लेड 320 भी कम पड़ जाता कल तो. So credit also goes to Latham for his brilliant batting, because एक time पे New Zealand were also going very slow, 90 for 3 in 20 over something. So he completely changed the game and yeah. And bowling में मेरे को obviously they could have done well. मतलब थोड़ा inexperience था bowling, but मुझे बस समझ नहीं आई यार. उमरान मलिक ने ओवर द विकेट आके लेथम को 3 बार यॉर्कर पे बीट किया. तू राउंड द विकेट आके स्टंप्स पे डालना यार. 5th स्टंप पे डाल के बार-बार बीट करके क्या मिल रहा है तेरे को? So उसको ऑब्वियसली थोड़ा गाइडेंस. उमरान मलिक का डेब्यू था और ठीक है. दैट्स विलियमसन को इतना अच्छा बॉल डाला बट स्लिप हटा दिए थे. तो या आई मीन देयर वर फ्यू अपॉर्चुनिटीज. नहीं आई थिंक न्यूजीलैंड स्लो खेल रही थी क्योंकि उनको पता था कि ये अंडर पर टोटल है एंड विल गेट इट. मतलब कि हम लास्ट में फिलिप्स का तो उनको जरूरत भी नहीं पार्टनरशिप बेसिकली. हाँ ग्लेन फिलिप्स का उनको जरूरत भी नहीं पड़ा. वो भी था, निशम भी था, दोनों थे. मतलब दोनों हिटर्स का उनको जरूरत ही नहीं पड़ा. ठीक है, तो इट्स लाइक वेरी सैंटनर तो अंडर पर टोटल था तो ज्यादा कुछ मतलब दे वर नॉट फाइटिंग दैट हार्ड आल्सो. एंड बहुत इजीली पेस को मैनूवर किया टॉम लेथम ने गैप्स में. और they knew कि उमरान मलिक प्रेशर में रहेगा, but still Umran took 2 wickets. I think that was just too good. Is Pant the vice captain right now? Yes, Pant is vice captain. He's been the vice captain काफी times, right? Whenever all these guys play. That's a problem. I was hoping they will drop Pant and Hooda will play next match, but अभी तो problem है. Pant तो सारे मैच खेलेगा. पता नहीं उसको क्या हो जाता है यार. टेस्ट मैच में वो आते से तीसरी चौथी बॉल पे अटैक स्टार्ट करता है. वनडे में T20 में 20 बॉल खेलना होता है पहले. Who do you want to keep then if you don't want to play Pant? Samson can keep, bro. Samson and Hooda. Samson and Hooda will play. But टीम मैनेजमेंट ऐसा नहीं सोचेगी ना. वो लोग पंत को कैरी करेंगे unless पंत को लोग चप्पलें मारने लगे तब तक वो उसको उठा के रखेंगे. मतलब वो भी वाइस कैप्टन so can't do much. But it was absolutely shocking innings. हाँ श्रेयांश भाई आप बता रहे थे कुछ. अगर ना दोनों टीम्स में वाइस कैप्टन ऐसे ही बना रखे हैं जिसको धोना पड़ रहा है. उधर केएल राहुल, इधर पंत. मतलब बल्ले ही नहीं हटे थे. मतलब अगर पंत के दोनों चौके जो थे वो भी एक एज था पहली बॉल का और एक वो फुल टॉस थी लेग साइड पे. एग्जैक्टली. अदरवाइज मतलब वो 2 बॉल पे 8 रन हटा लो तो कुछ भी रन नहीं है. अरे पहले बॉल पे उसने चौका मार दिया था, वो आउटसाइड एज वाला पहला बॉल पे चौका आ गया था. उसके बाद वो 11 ऑफ 21 था भाई. मतलब नेक्स्ट तो मतलब 7 रन उसने बनाए 21 कुछ बॉल में. तो दैट इज जस्ट शॉकिंग. मतलब कि कैसे फिर सेकंड लास्ट बॉल पे उसने चौका फिर से मारा, वो लेग साइड फुल टॉस वाला, और 25 रन हो गए, 15 रन हो गए उसके 22-23 बॉल में. तो मतलब कि ऐसे तो तुम नहीं खेल सकते, इतने डॉट्स तुम नहीं खेल सकते. और श्रेयस अय्यर भी वहां पे दूसरे एंड पे मतलब कि फर्ग्यूसन और इनकी बॉलिंग चल रही थी. मिलने और हेनरी की बॉलिंग चल रही थी मिडिल ओवर्स में. ये बहुत अच्छा टैक्टिक मुझे लगा. वो पूरा डॉट बॉल से. मैं कल बिगनिंग से बोल रहा था मिल को खिलाया तो न्यूजीलैंड ने गलती की, बिकॉज उसको बिल्कुल भी थ्रेटनिंग बॉलिंग नहीं करता है और उसके पेस सब अच्छे से यूज करते हैं. पर उसको भी हमने ऐसा नहीं कि 75 रन मारते कम से कम. उसको भी पूरा अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है भाई. मिल को सबसे अच्छा रिस्पेक्ट दिया है. और श्रेयस अय्यर ने तो और मैट हेनरी को तो भाई फर्स्ट 9 ओवर्स में 31 रन पड़े थे सिर्फ.
I mean उसको 2-3 ओवर you see him off, then you have to start hitting him. Like उसका पेस अच्छे से आता है 130 वाले जो बॉलर्स होते हैं उनको आप पेल सकते हो यार. यार आई थिंक हमने गलती ये कर दी कि हमने श्रेयस अय्यर को वन डाउन भेज दिया. ठीक है, व्हेन द टीम इज 124 for 1 in like 23 overs, तो श्रेयस अय्यर क्यों भेज रहे हो? बेटर सेंड स्काई who's in form and he can play some aggressive Very good shots. point, yes. थोड़ी स्ट्रेटजी का थोड़ा करना पड़ेगा. We are not taking quick decisions. Yeah, no, what Sky hurts का is like ODI में they पता नहीं must have चल been रहा है happy कि actually. हम लोग 300 बना दिए. उनका But मतलब he's सोच ही इतनी छोटी रहती है यार. वो 350 तक सोचते भी नहीं है. मतलब अभी ना ग्रेग चैपल की याद आती है. ग्रेग चैपल जब हम्म। इंडिया का कोच था तब वो एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करता था, इरफान पठान को वन डाउन भेज के कि मारो पिन चीटर की तरह. अभी इंडिया एकदम भाई पुराने सऊदी की बॉल भी स्विंग नहीं हो रही थी यार. सऊदी की बॉल भी स्विंग नहीं हो रही थी. Flexibility. पता नहीं किस बात के लिए रिस्पेक्ट देनी होती है कंडीशंस को. मतलब मैं तो हमेशा न्यूजीलैंड बोलता इतने हूँ अच्छे पिचेस बना. मैं तो हमेशा बोलता हूँ ग्रेग चैपल बहुत अच्छा कोच था. बहुत लोग इससे डिसएग्री करें. फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी है इन्होंने ना. अब जैसे उस टाइम इंडिया में 7 बॉलर्स थे, अब 5 के अलावा कुछ रहते नहीं है. बॉलर को बैटिंग नहीं आती, बॉलिंग का batting बहुत दिक्कत है यार. अगर कल हार्दिक पांड्या But- खेल रहा था but- तो मेरे को लगता है 2 but ओवर एक मिलते मिनट, वाशिंग एक को. मतलब कल- उसको 10 कल- ओवर करा दिए कल. सबसे बड़ा क्वेश्चन है कल दीपक चहर. मतलब इफ यू कंपेयर दीपक चहर एंड शार्दुल ठाकुर, तो बॉलिंग तो दीपक चहर इज मच बेटर बॉलर देन शार्दुल ठाकुर. और बैटिंग में भी आई Correct. थिंक आई विल गिव दीपक चहर द एज ओवर शार्दुल ठाकुर. तो भाई दीपक चहर को क्यों नहीं खिला रहे थे ये लोग दीपक चहर को पता नहीं क्या सड़ा रहे हैं बैठा के उसको. वो भाई एक्सपीरियंस्ड ओडीआई बॉलर है तुम्हारा. अगर इफ यू रियली वांट टू विन दिस सीरीज तो तुम उसको चांस देते ना. Maybe this was an experiment. Maybe they wanted to see how it works out. Maybe. यार नहीं भाई, दीपक चहर को एक बार इंजरी क्या हो गया उसके बाद से उसको बहुत कम खिला रहे हैं. मैं देख रहा हूँ लाइक बहुत टाइम से लाइक उसको साइड लाइंस में ही रखते हैं. अरे वो 1-2 मैच से ज्यादा खेल ही नहीं पाता ना. साउथ अफ्रीका सीरीज में भी एक मैच खेला, इंजर भी हो गया. वापस इंजर्ड हो गया. अभी दिक्कत ये रहती है. या एनीवेज एक बात अच्छी है कि हैमिल्टन में वेदर क्लियर हो गया है. तो जो पहले रेन स्केयर था, अभी कल मैच होना चाहिए हैमिल्टन में. सो आई मीन आज ही रात में. हाँ कल मैच है. हाँ कल सुबह मैच है. तो देखते हैं अभी टीम कॉम्बिनेशन क्या इंडिया सेम रखेगी. वो भी सेम ही रखेगी. ये लोग हारते रहेंगे जब तक इनका मन नहीं भर जाता. सेम रखेंगे, हारेंगे. और बैटिंग तो अच्छी है यार. बॉलिंग का थोड़ा कंसर्न है बिकॉज बैटिंग आई डोंट एग्री. बैटिंग अच्छी है. बैटिंग बिल्कुल बेकार है. बैटिंग बिल्कुल बेकार है. ऐसे बैटिंग नहीं करते ओडीआई क्रिकेट में. मॉडर्न बेकार क्रिकेट कर रहे हैं. बैटर्स तो अच्छे हैं यार. बैटर्स तो अच्छे हैं. I don't agree भाई. जैसे ये लोग खेल रहे थे बैटिंग धवन बिल्कुल बेकार है यार. फालतू बैटिंग कर रहे हैं. एंड ये अंडर पार टोटल में तुम ये क्या ग्राउंड था, ईडन पार्क. इसका तूने डायमेंशन देखा है भाई? टच करो तो 50 मीटर थी बाउंड्री. तो तुम यहाँ पे 300 क्या बना रहे हो तुम भाई? बड़े बड़े एमसीजी ये सब में 300 बना रही है इंग्लैंड. वहां पे वो लोग हार जा रहे हैं, तुम यहाँ पे 300 बना रहे हो. मतलब क्या, कहाँ से तुम खेल रहे हो? ये 355 बनाया वाला था पिच है भाई. ये 3 हाँ ये तो 375 वाला पिच है. ये यहाँ पे तुम 306 बना रहे हो भाई. डॉट बॉल्स खेल रहे हैं मिडिल ओवर्स में. फ्रॉम 23 ओवर्स टू 33 ओवर्स इंडिया स्कोर हैज नॉट मूव्ड एट ऑल. मतलब 23 से 33 ओवर के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं था स्कोर का. मतलब इट वाज जस्ट शॉकिंग कि 2 विकेट गिर गए तो ऐसा लग रहा है 5 विकेट गिर गया. मतलब तुम पूरा डिफेंस में ही आ गए हो. ऐसे थोड़ी होता है यार ओडीआई बैटिंग. टेस्ट मैच थोड़ी है ये. तुम 10 ओवर खेलोगे. Amazing run by Shikhar. Can see how frustrated Shikhar is with the team. वैसे I agree. The team selection is not good. Neither is the strategy. नहीं पता है, मतलब एक पैटर्न दिख रहा है कि इनका ये लोग मतलब ना एक जैसे होता है ना कि they are not able to look outside their own bubble. मतलब ये बबल जो हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, वो बबल के बाहर ये लोग देख ही नहीं पा रहे. हम ऐसे ही सेट है, हम यही करेंगे, हमको यही करने आता है, हम ऐसे ही करेंगे बस. वो बबल के बाहर विलियमसन इन फॉर्म आ जाएगा इन लोगों की वजह से. विलियमसन का फॉर्म वापस आ गया है जो नहीं, टाइम से स्ट्रगल कर रहा था. एक्चुअली में दोनों कोच भी वैसे ही है ना. लक्ष्मण और द्रविड़ भी अपने जमाने में एक ही स्टाइल से खेलते थे, तो वो उनका कोचिंग में भी वो पैटर्न दिख रहा है. नेहरा को आना चाहिए. चहल बिल्कुल थ्रेटनिंग नहीं लग रहा यार. चहल का क्या किया जाए? क्या कुलदीप खिलाना चाहिए क्या? नहीं, चहल अच्छा किया था T20s में. देखो अभी ठीक है, he had a bad match but I think Williamson was too good actually. मतलब 2 चौके जो विलियमसन ने उसको लगाए मिड विकेट पे, वो दोनों चौके वाले बॉल नहीं थे. तो इट वाज जस्ट विलियमसन सच में फॉर्म वापस आया. विलियमसन ने कुछ मिड विकेट पे बहुत अच्छे शॉट्स मारे फास्ट बॉलर्स. विलियमसन देख भाई, ओडीआई में विलियमसन इज एट होम, क्योंकि ना उसको पता है कि मैं अगर
सिंगल अपना लूंगा, जैसे वो T20 लो वर्ल्ड स्टार्ट कप, करूंगा तो बाद में कैपिटलाइज। हाँ T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वाला जो गेम है ना, भाग भाग के रन, वो जो पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा था, दैट एक्चुअली वर्क्स हियर, यू हैव टू डू द सेम थिंग हियर। तो ही जस्ट डज द सेम थिंग, वेदर इट्स T20 और ODI, वो भागते ही रहता है, और वो भाग के उतने रन करीब बना ही लेगा, एक दो चौके इधर उधर मारेगा, बाकी सिंगल डबल चलाते रहेगा। तो दैट इज हिज गेम इज एक्चुअली परफेक्टली सूटेड फॉर ODI क्रिकेट मोर देन T20 क्रिकेट। तो इसमें वो हमेशा फॉर्म में ही रहेगा, इस फॉर्मेट में वो कभी ऑफ द फॉर्म नहीं रहेगा। Williamson is a really good batsman. It's unfair to say कि इसका फॉर्म खराब है ऐसा कुछ। टेस्ट में ODIs में he'll always be performing. It's unfair to say मे बी New Zealand T20 के स्कोर से उसका ODI फॉर्म जज नहीं करना चाहिए था मुझे। हाँ T20 से वो T20 का बैट्समैन है नहीं एक्चुअली, विलियमसन T20 का बैट्समैन है नहीं, वो ODI फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है, और अभी वो और रन्स पाइल ऑन करेगा, मतलब कि अनफॉर्चुनेटली ही मिस्ड अ सेंचुरी, शुड हैव, लेथम भी एकदम बेवकूफ जैसा मारता रह गया लास्ट में, मतलब सोचा ही नहीं कि कैप्टन को सेंचुरी देना है, मतलब लास्ट में आराम से उसको सेंचुरी दे सकते थे, देयर वर लॉट ऑफ रन्स एंड बट हाँ वो तो लेथम तो भाई पूरा लाइक विलियमसन कब से 80 पे था, जब ऐसे 50-60 रन चाहिए थे, बट लेथम इवन 91 पे था, और 91 पे था और 25 रन थे, तो 91 पे था 25 रन थे, तो उसमें भी लेथम ने एक ओवर में ही सब खत्म करके वो कर दिया पूरा। So after this, what do you guys feel about the next game फिर? भाई नेक्स्ट गेम आई वांट इंडिया टू चेज, थोड़ा चांस रहेगा मुझे लगता है, तो वो भी एक चीज है। कैसे हमारी बैटिंग चेस करती है, मुझे तो उम्मीद नहीं है ज्यादा। What do you say शिखर? नहीं चेज डेफिनेटली करना चाहिए, बट we need to, the bottom line is people, we need to learn to set target without Surya Kumar Yadav। बिना सूर्य कुमार यादव के हमें कैसे फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करना है वो हमें आना चाहिए। अगर वो फेल हो रहा है सूर्य कुमार यादव, तो तुमको भाई पता ही नहीं है कि हमें टारगेट क्या सेट करना है, क्या करना है, ऐसा ये एक पैटर्न। चल हमारी बैटिंग लॉन्ग थी तब भी, मतलब फियर दिख रहा था, मतलब वो समझ नहीं आया मुझे। ये एक पैटर्न आ रहा है कि बिना सूर्य कुमार यादव के हम लोग फर्स्ट इनिंग्स में अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे हैं। इवन इन द फर्स्ट गेम सूर्य कुमार यादव, फर्स्ट T20 सूर्य कुमार यादव ने 190 पहुंचा दिया, बाकी बैट्समैन वेर बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, एंड द सेम थिंग इज जस्ट हैपनिंग अगेन एंड अगेन। तो यू नीड टू फाइंड अदर बैट्समैन फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। अगर पंत नहीं वर्क कर रहे तो उसको ड्रॉप करो, एंड आई होप द न्यू सिलेक्शन कमिटी, जो भी नया सिलेक्शन कमिटी आएगा, वो कुछ बोल्ड डिसीजंस ले पाए, क्योंकि अब ये टीम मैनेजमेंट ठीक नहीं कर सकती, मैं ये समझ गया हूँ, क्योंकि टीम मैनेजमेंट का मेंटालिटी बहुत ही मतलब कि नैरो माइंडेड है, एंड उनसे अब नहीं हो पाएगा। तो इट हैज टू बी सिलेक्टर्स हु हैव टू टेक सम वेरी हार्श कॉल्स। अगर सिलेक्टर्स भी इन लाइन ऑफ टीम मैनेजमेंट है, देन नहीं हो पाएगा। जैसे लास्ट सिलेक्शन कमिटी ऐसा लगा कि टीम मैनेजमेंट और कैप्टन जो बोल रहा था वही कर रही थी। तो अगर द सिलेक्टर्स हैव टू बी मोर ब्रेव पीपल। अब अजीत आगरकर अप्लाई किया है सिलेक्टर्स के लिए, वो आई डोंट थिंक मतलब कि अजीत आगरकर कुछ कर पाएगा ऐसे बोल्ड डिसीजन। तो क्राइटेरिया भी तो ये लोग यही रखे हैं, कम से कम 5 साल खेला होना चाहिए। अब 5 साल जस्ट जो खेला है इंटरनेशनल या डोमेस्टिक क्रिकेट, वो कहाँ से द्रविड़ और लक्ष्मण को अपोज कर पाएगा कि मुझे अपना ये टीम बनाना है। तो दैट इज द पॉइंट। चलो लेट्स होप हैमिल्टन में कुछ चेंज होगा, and see if we can come back in the series, otherwise तो it can very quickly become 3-0 like जिस तरह से न्यूजीलैंड के बैट्समैन फॉर्म में। All right, I'm pretty sure it will be 3-0 but okay। देखते हैं। और एक और दूसरे क्रिकेट के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान ने श्रीलंका को पहले मैच में हरा दिया, which is हम लोग देखना चाहते थे ऐसा कुछ, एंड गुड फॉर अफगानिस्तान। दे में 294, तो जनरली देखना है उनकी बैटिंग हमेशा वीक रहती है, बट जदरान ने 100 मारा एंड देन दे इजीली डिफेंडेड दैट टोटल। सो नहीं, श्रीलंका के आधे प्लेयर्स तो चले गए। अब चामिका करुणारत्ने इज गॉन फॉर 1 ईयर, एंड भानुका राजपक्षा डिसाइडेड नॉट टू प्ले ओडीआई क्रिकेट, जबकि उसने 1 साल से ओडीआई क्रिकेट नहीं खेला है। फिर उसने बोला आई वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस फॉर्मेट, व्हिच इज द मोस्ट वियर्ड थिंग कि अगर आप 1 साल से ब्रेक पे ही हो, उसके बाद आप बोल रहे हो आई वांट टू टेक ब्रेक फ्रॉम दिस फॉर्मेट। मे बी ही डजंट वांट टू प्ले ओडीआई क्रिकेट। तो आई थिंक श्रीलंका इज वेरी वीक विदाउट दीज टू प्लेयर्स who are the core of Sri Lankan team. So without Bhanuka and Chamika,
I don't think Sri Lanka has a chance in this series. They are very weak. Yeah, I really think Afghanistan can win this one. एंड Hmm. बाकी इंग्लैंड ने 2 टीम्स बना के यूएई में भेजा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग पाकिस्तान Hmm. सीरीज के पहले, व्हिच इज इंटरेस्टिंग मैन, लाइक हाउ सीरियसली दे टेक दीस Hmm. सीरीज. ये अच्छा लगा देख के, बिकॉज उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई चांस भी नहीं बचा इस बार, बट Hmm. स्टिल दे आर गोइंग टू पाकिस्तान विद एन इंटेंट. दिस शोज दैट दे आर प्रैक्टिसिंग एंड इट इज नहीं, गुड टू सी. वो सीरीज का हम अलग से विल कवर. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड नहीं, मैं सीरीज. जस्ट सोचा वर्ल्ड क्रिकेट का अपडेट दे हाँ, दूं. या एंड वेस्ट इंडीज इज इन ऑस्ट्रेलिया, दे विल प्ले अ टेस्ट सीरीज देयर, बट yeah, या it's starting in 4 days, that test series. या मिचेल स्टार्क आ जाएगा फोड़ने सबको भाई टेस्ट मैच में पूरा Stark जोश. is really good. No doubt. कल मैं मिचेल स्टार्क के कुछ वीडियोस देख रहा था भाई, तो मजा आ गया यार. उसके पुराने टाइम के, मतलब जब माइकल क्लार्क कैप्टन था, क्या फोड़ू बॉलर था भाई वो, सीरियसली. हाँ, ठीक है. 2015 वर्ल्ड कप में उसका पीक था आई थिंक. एक मैच था जिसमें उसने गेल और पोलार्ड को इतना बुरा आउट किया, मतलब दे वर नॉट इवन एबल टू लुक अप आफ्टर गेटिंग आउट टू हिम. that was so embarrassing. मतलब वो उसने भाई पूरे डंडे उखाड़ के रख दिए, मतलब इस तरह की बॉलिंग की है उसने, स्विंगिंग फुल डिलीवरीज. Okay guys, so let's close this. Hope India gets to come back, but I want India to lose this series, lose some bilateral series and take some learning. तो हम हमेशा ही करते रहते हैं, हमारी लर्निंग चलती रहती है. तो बट लर्निंग तब तक क्या करेंगे लर्न करके जब हमारे पास कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज नहीं है, हम सेम ही थ्योरी और प्रैक्टिकल में जा रहे हैं और फिर हम लर्न कर रहे हैं. तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. बट लेट्स सी कि इंडिया कितना स्पाइरल डाउन करती है. दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि कितना और नीचे जा सकती है. एंड आई होप, जैसे कुणाल बोल रहा है कि इट्स 3-0 एंड वी गेट एन emphatic thumping here in New Zealand. So that will be my goal for this series. Okay guys, Cool. see you then. Thank you. Thank you.